اونچی آواز میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اکیلے میں اونچی آواز میں نماز کے 2 حروف بھی پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے احکام کو بجا لانے اور ممنوعات سے اجتناب برتنے کا نام بندگی و عبادت ہے۔ اسلام کے نزدیک عبادت کا مفہوم نہایت وسیع ہے۔ اسلام کا مطالبہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی عبادت سے عبارت ہو، وہ اس طرح زندگی بسر کرے کہ اس کا ہر کام عبادت میں شمار ہو، اور اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے، ہر بات میں حکم الہی کو پیش نظر رکھے۔ اسلام اس بڑی عبادت کے لیے انسان کو جن ذرائع سے تیار اور اس کی تربیت کرتا ہے، عرف عام میں انہیں عبادت کہا جاتا ہے، لیکن دراصل یہ تمرینات عبادت ہیں۔ انہیں ارکان اسلام بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اسلام کی عمارت انہی ستونوں پر قائم ہے۔ ارکان اسلام میں نماز سر فہرست اور پہلے نمبر پر ہے۔ ان تمام عبادات میں نماز کو جو اہمیت و فضیلت حاصل ہے وہ کسی بھی صاحب ایمان اہل نظر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ قرآن کریم کے ہر پیغام میں صلاۃ یعنی نماز کا لفظ حرف جلی میں موجود ہے۔ ایمان کے بعد سب سے اہم رکن جس کا مطالبہ اہل اسلام سے کیا گیا ہے وہ نماز ہی ہے۔ نماز مسلمانوں کی دینی پہچان اور امتیازی نشان ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن و حدیث میں اس کی ادائیگی پر بہت زیادہ زور اور ترک پر وعید موجود ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نماز کی دین میں وہی اہمیت ہے جو انسانی جسم میں سر کی ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان امتیاز کرنے والی چیز نماز ہے، لہذا جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر کیا۔ جامعہ ترمذی۔ اس وعید سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں نماز کی اہمیت کیا ہے۔ جو چیز جس قدر اہم اور ضروری ہوتی ہے اس کی بجا آوری پر اجر و ثواب بھی اسی قدر زیادہ ملتا ہے۔ چنانچہ نماز کا ثواب بھی اس قدر ہے کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا، لیکن 5 وقت نمازوں میں فجر کی نماز کی اہمیت و فضیلت سب سے نمایاں ہے، اور اس کی ادائیگی پر اجر و ثواب بھی دیگر 4 نمازوں سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر کے وقت دنیا نیند کی آغوش میں محو استراحت ہوتی ہے اور خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہوتی ہے۔ لوگوں پر غفلت اور سستی کی چادر تنی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسے میں نرم و گرم آرام دہ بستر کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت و محبت میں بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہونا بڑا پرمشقت اور نفس کو زیر کرنا جیسا مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ بندے کو جس نیکی کے کرنے میں مشقت زیادہ ہو اور نفس و شیطان سے لڑائی لڑنی پڑے، اللہ اس پر زیادہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے، چاہے وہ نیکی کتنی ہی چھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن و حدیث سے بھی نماز فجر کی قرات و تلاوت قرآن کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے، جس سے فجر کے وقت اور نماز فجر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، فجر کا قرآن، بے شک فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن محسوس و مشہود ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ یعنی اگر فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن اگر سمجھ کر بغور پڑھایا یا سنایا جائے تو وقت فجر کے تمام انوار و تجلیات اور قرآنی فیوز و برکات متشکل ہو کر اللہ کے وجود اور اس کے وحدانیت کی گواہی دیتے محسوس ہوتے ہیں۔ احادیث نبوی سے بھی نماز کی اہمیت و فضیلت اور نورانیت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعات سنتیں دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے افضل ہیں۔ قرآن و حدیث اور اسلامی لٹریچر میں دنیا سے مراد مشرق و مغرب، شمال و جنوب کا کرۂ ارضی نہیں بلکہ دنیا سے مراد ہے۔ یہ کائنات اور اس کی تمام تر نعمتیں، خزانے، دولت و ثروت اور حکومت و وسطوت مراد ہیں۔ سوچئے جب فجر کی 2 رکعات سنتوں کی یہ فضیلت ہے کہ پوری دنیا کی نعمتیں اور خزانے اس کے سامنے ماند اور ہلچ ہیں، تو پھر فجر کے فرض کا کیا عالم ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے، یعنی جو شخص نماز فجر کا فریضہ ادا کر لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بخاری و مسلم ہی کی ایک روایت میں ہے کہ جس نے 2 ٹھنڈے وقت کی نمازیں یعنی فجر اور عصر ادا کر لی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر و عصر ادا کر لینے والے کو جنت کی بشارت سنائی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عشاء کی نماز باجماعت ادا کرے گا اسے آدھی رات کے قیام کا ثواب ملے گا، جو عشاء و فجر کی نمازیں باجماعت ادا کرے گا اس کے لیے پوری رات کے قیام کا ثواب ہوگا۔ نماز فجر کی ادائیگی میں ہماری سستی و غفلت اور کاہلی و کوتاہی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ کوئی بھی موسم ہو، بقیہ 4 نمازوں کے مقابلے میں فجر میں نمازی بہت کم تعداد میں ہوتے ہیں۔ یہی حال گھروں میں خواتین کی نماز فجر کا ہے۔ فجر میں وہ اہتمام نہیں ہوتا جو بقیہ 4 نمازوں کی ادائیگی میں ہوتا ہے۔
मौसम गर्मा में रातें छोटे होने का बहाना और मौसम सरमा में सुबह सर्दी का बहाना अजर अजर लंघ, लेकिन हमारा हर बहाना और अजर नमाज में कोताही और गफलत के सिलसिले में अल्लाह के यहाँ नाकाबिले कबूल होगा। हम में से अक्सर लोगों को एक शिकवा हमेशा रहता है कि रोजी में बरकत नहीं, घर में बरकत नहीं, कितना ही कमा लें पता ही नहीं चलता कि कहाँ गया। हर वक्त कोई ना कोई परेशानी रहती है, कभी बीमारी तो कभी कोई और तंगी। अगर हम इस तमाम बेबरकती, तंगदस्ती, बेरोजगारी और परेशानियों को नमाज फजर की अदम अदायगी के पस मंजर में देखें तो मालूम होगा ये सब बेबरकती इसी सबब से है कि हम नमाज फजर की अदायगी में हद दर्जा कोताही, गफलत, लापरवाही और सुस्ती का शिकार हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हवाले से मुतअद्दिद अहादीस मौजूद हैं जिनमें रिज़्क की तकसीम फरावानी और बरकत को नमाज फजर की अदायगी से मशरूत किया गया है। एक फरमान नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफहूम है कि रिस्क तकसीम करने वाला फरिश्ता हर सुबह फजर के वक्त बंदों का रिस्क लेकर जमीन पर उतरता है। लिहाजा जो दरवाजा फजर के वक्त खुला होता है फरिश्ता उसका रिस्क दरवाजे पर रखकर चला जाता है, और जो दरवाजा फजर के वक्त बंद होता है फरिश्ता उसका रिस्क वापस लेकर चला जाता है। इस फरमान नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फजर के वक्त दरवाजा खुला होने का मतलब ये है कि जिस घर के अफराद सुबह फजर के वक्त बेदार होकर नमाज फजर अदा करते हैं उन्हें उनका रिस्क अदा कर दिया जाता है। दरवाजा बंद होने से मुराद ये है कि जिस घर के रहने वाले सुबह फजर के वक्त सोते रहते हैं और नमाज फजर की अदायगी में गफलत कोताही के मुनतकिब होते हैं उन्हें उनके रिस्क से महरूम रखा जाता है। अब में से अक्सर नमाज फजर खुसूसन और दीगर नमाजों को अमूमन छोड़कर अपने घरों में खैर बरकत के लिए कुरान ख्वानी, मिलाद की महाफिल के नकार, लोहे कुरानी के तवीज़ अवेजा करने जैसे नेक कामों की तरफ मुतवज्जो होते हैं। इससे तो इनकार नहीं कि बिलाशुबा इन तमाम कारहाए खैर में बरकत का अंसर मौजूद होता है, लेकिन कुरान ख्वानी, महफिल मिलाद, लोहे कुरानी के नक्श, घर में अवेजा करने से खैर बरकत का होना नमाज की अदायगी से मशरूत है। हर खैर बरकत के सोते नमाज से फूटते हैं। अल्लाह की तमाम नेमतों, बरकतों और इसके दरिया नमाज की अदायगी से ही बहती हैं। इसके साथ ही ये अमर भी अहम है कि फजर के अलावा बकिया 4 नमाजों में भी खैर बरकत नमाज की फजर की अदायगी ही से मशरूत है, इसलिए कि खैर बरकत का आगाज नमाज फजर की अदायगी ही से होता है। याद रखिए, नमाज फजर की कोताही और गफलत और नमाज ना पढ़ना घर की नहुसत की अलामत का आगाज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मुसलमान को खबीस और मुनाफिक करार दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे शख्स को मेरा दिल चाहता है आग लगाकर जला दूं। बैठकर नमाज पढ़ना कैसा है? जो लोग बैठकर नमाज पढ़ते हैं वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक जरूर सुने। वाज़ेह रहे कि फर्ज, वाजिब, फजर की सुन्नत, बल्कि एक रिवायत के मुताबिक दीगर सुन्नत मौक़दा की नमाज भी खड़े होकर पढ़ना फर्ज है। उज़र और मजबूरी के बगैर फर्ज, वाजिब और सुन्नत मौक़दा की नमाज बैठकर पढ़ने से नमाज नहीं होगी। हाँ, अगर उज़र या बीमारी की वजह से बैठकर नमाज पढ़ेगा तो नमाज हो जाएगी। सूरत मसूला में अगर फजर नमाज खड़े होकर पढ़ने की कुदरत है तो खड़े होकर नमाज पढ़ना फर्ज है। अगर कोई बीमार शख्स खड़े होकर फर्ज नमाज अदा करने पर कुदरत रखता है मगर इसके बावजूद वो बैठकर फर्ज नमाज पढ़ता है तो इसकी नमाज नहीं होगी, और जो नमाज बैठकर अदा की है उसको दोबारा खड़े होकर पढ़ना लाजिम होगा। अलबत्ता अगर कोई शख्स खड़े होने पर कादिर है लेकिन रुकू और सजदे करने पर कादिर नहीं, या खड़े होने पर और रुकू करने पर कादिर है लेकिन सजदे करने पर कादिर नहीं, तो इससे खड़े होने की फर्जियत साकित हो जाएगी। ऐसा शख्स बैठकर इशारे से रुकू और सजदे करके नमाज पढ़े और सजदे के लिए रुकू से ज्यादा सर झुकाए। जो शख्स बीमारी की वजह से खड़े होने पर कादिर नहीं या खड़े होने पर कादिर है लेकिन जमीन पर सजदा करने पर कादिर नहीं, या क़याम और सुजूद के साथ नमाज पढ़ने की सूरत में बीमारी में अजाफा या शिफा होने में ताखीर या नाकाबिले बर्दाश्त दर्द का गालिब गुमान हो तो इन सूरतों में वो बैठकर नमाज पढ़ सकता है। अलबत्ता किसी काबिले बर्दाश्त मामूली दर्द या किसी मोहम तकलीफ की वजह से फर्ज नमाज में क़याम को तर्क कर देना और बैठकर नमाज पढ़ना जायज नहीं। इसी तरह जो शख्स फर्ज नमाज में मुकम्मल क़याम पर तो काबिल नहीं लेकिन कुछ देर खड़ा हो सकता है और सजदा भी जमीन पर कर सकता है तो ऐसे शख्स के लिए उतनी देर खड़ा होना फर्ज है, अगरचे किसी चीज का सहारा लेकर खड़ा होना पड़े। इसके बाद वो बकिया नमाज जमीन पर बैठकर पढ़ सकता है। और जो शख्स जमीन पर बैठकर नमाज पढ़ने के साथ जमीन पर सजदा करने पर भी कादिर हो उसे जमीन पर ही नमाज पढ़नी चाहिए। ये तरीका सुन्नत के करीब है। और अगर जमीन पर सजदा करने पर कादिर नहीं तो ऐसी सूरत में शुरू से जमीन या कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ सकता है।
اور इस सूरत में इसकी नमाज इशारों वाली होती है और इसलिए पढ़ने बैठने की कोई खास हैयत मुतय्यन नहीं है। वो जिस तरह सहूलत हो बैठकर इशारे से नमाज पढ़ सकता है, चाहे जमीन पर बैठकर नमाज पढ़े या कुर्सी पर बैठकर। अलबत्ता जमीन पर बैठकर नमाज पढ़ना ज्यादा बेहतर है। लिहाजा जो लोग जमीन पर बैठकर नमाज अदा कर सकते हैं तो जमीन पर बैठकर नमाज अदा करें, और अगर जमीन पर बैठकर नमाज पढ़ने में मुशक्कत हो तो वो कुर्सी पर बैठकर फर्ज नमाजें, वितर और सुन्नत सब पढ़ सकते हैं। और ऐसी सूरत में यानी जब कयाम पर कुदरत ना हो या जमीन पर सजदे की कुदरत ना हो, चूंकि कयाम साकित हो जाता है, इसलिए ऐसे मरीज के लिए अफजल ये है कि वो मुकम्मल नमाज बैठकर अदा करे। अलबत्ता अगर कयाम के दौरान कयाम करे और रुकू व सुजूद बैठकर इशारे से करे तो ये भी जायज है। लिहाजा ऐसे मरीजों के लिए औला यही है कि इमाम की इक्तदा में भी मुकम्मल नमाज बैठकर अदा करे, क्योंकि ये सजदे के करीब है और जमात की नमाज में सफ़ों में खलल से भी हिफाजत का जरिया है। फ़कत वल्लाह आलम। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो उनमें से कोई शख्स एक कपड़े में नमाज ना पढ़े कि इसके कंधे पर कपड़े का कोई हिस्सा ना हो, बरहना सर नमाज पढ़ना आदाब और सुन्नत के मुनाफी है। उज़र या मजबूरी के सबब हो तो इसकी ही रुखसत है, लेकिन आदत बना लेना कतन दुरुस्त नहीं है। और अगर नमाज के दौरान सर से टोपी गिर जाए तो एक हाथ से नमाज में ही उठाकर सर पर रखना अफजल और बेहतर है। नंगे सर नमाज पढ़ने से नमाज की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। नमाज की कबूलियत के लिए सर का ढांपना औरत के लिए जरूरी है और इस पर मर्द इनमें शामिल नहीं है। लिहाजा नंगे सर नमाज पढ़ने से नमाज सही होती है। सर ढांपना सुन्नत और मुस्तहिब है, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अमूमन सर पर उमामा बांधकर नमाज पढ़ा करते थे। ये नमाज की जीनत और एहतराम के लिए मुस्तहिब समझा जाता है। कुछ सकाफतों और रवायात में नंगे सर नमाज पढ़ने को गैर मामूली समझा जा सकता है। मसलन मशरिक के वस्त और जनूबी एशिया में मर्द अमूमन टोपी या उमामा पहनकर नमाज पढ़ते हैं। सर ढांपकर नमाज पढ़ने से इबादत की खूबसूरती और जीनत बढ़ती है, जो अल्लाह ताला के हुजूर एहतराम और खुशू की अलामत है। बाज़ उलमा के नजदीक सर ढांपकर नमाज पढ़ने में नमाज में खुशू और खुजू पैदा होता है, जो इबादत की रूहानी कैफियत को बढ़ाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई नमाज पढ़े तो अपने दोनों कपड़े पहन लें। बेशक अल्लाह ताला ज्यादा हकदार है कि इसके लिए जीनत की जाए। यह है कि नंगे सर नमाज पढ़ने से नमाज की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। सुस्ती से नंगे सर नमाज पढ़ना यानी टोपी पहनना बोझ मालूम होता हो या गर्मी मालूम होती हो, मकरूह तंजिया है यानी नापसंदीदा है। और अगर तहकीर नमाज मकसूद है, मसलन नमाज कोई ऐसी अहम चीज नहीं जिसके लिए टोपी या उमामा पहना जाए, तो ये कुफ्र है। और खुशू व खुजू यानी नमाज में दिल लगने के लिए सर बरहना यानी नंगे सर नमाज पढ़ी तो मुस्तहिब है। काहली, सुस्ती और लापरवाही की बिना पर टोपी के बगैर नंगे सर नमाज पढ़ना मकरूह है, तंजीही है और इससे सवाब में कमी होती है। अलबत्ता अगर कभी गलती से टोपी साथ ना हो और फौरी तौर पर किसी जगह से भी मुयस्सर ना हो सकती हो, इस सूरत में नंगे सर नमाज पढ़ने की वजह से कराहत नहीं होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमूमी अहवाल में उमामा या टोपी के जरिए सर मुबारक को ढांपा करते थे, इसलिए सर पर उमामा या टोपी पहनना सुन्नते ज़वाइद में से है, जिसका दर्जा मुस्तहिब का है और सर का ढांपना लिबास का हिस्सा है। सहाबा कराम अलैहिमुर रिज़वान और सलहाए उम्मत का यही मामूल था। कभी कभार नंगे सर हो जाना गुनाह नहीं, अलबत्ता मुस्तकिल तौर पर नंगे सर रहना शरअन नापसंदीदा और खिलाफे अदब है। और नंगे सर रहने के नंगे सर रहने को मामूल और फैशन बना लेना इस्लामी तहजीब के बिल्कुल खिलाफ है। अगर कोई गैरों की मुशाबत में नंगे सर रहता है तो वो गुनाहगार होगा। मुफ्ती रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैहि लिखते हैं, सर बरहना होना एहराम में साबित है, सवाए एहराम के भी अहयामन हो गए हैं, ना कि दाइमन चलते फिरते थे। खलासा कलाम यह है कि उमामा या टोपी लगाकर नमाज पढ़ना अफजल है, लेकिन अगर कोई उमामा या टोपी लगाए बगैर ही नंगे सर नमाज पढ़ता है तो इसकी नमाज जायज़ व दुरुस्त है, इसलिए कि हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है, कोई शख्स एक कपड़े में इस तरह नमाज ना पढ़े कि इसके कंधे नंगे हों। एक रिवायत के अंदर ये अल्फाज हैं, उमर बिन अबू सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मे मुस्लिमा के घर में एक ही कपड़े में लिपटे हुए नमाज पढ़ते देखा। आपने उसकी दोनों तरफीन अपने कंधों पर रखी हुई थी। इन दोनों हदीसों से ये बात वाजिया हो गई कि मर्द के लिए दौरान नमाज सर का ढांपना जरूरी नहीं है, वगरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंधों के साथ सर का भी जिक्र फरमाते। लिहाजा सर ढांपने की तरगीब तो दी जाए, लेकिन अगर कोई नहीं ढांपता तो इसको मलामत ना किया जाए।
माजी करीब में हमारी माशरती इकदार में नंगे सर रहना और खासतौर पर बड़ों के सामने नंगे सर आना एक नापसंदीदा और मायूब बात समझी जाती थी, लेकिन अब कदरें बदल चुकी हैं, इसलिए अब नंगे सर रहना हमारे माशरे में भी बदनामी या ऐब की उलामत नहीं है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा हम कह सकते हैं कि नंगे सर नमाज पढ़ना अगरचा जायज है, मगर अदब और हमारी दीनी इकदार का तकाजा ये है कि सर पर कम अज कम टोपी पहनकर नमाज पढ़ी जाए, लेकिन किसी नंगे सर नमाज पढ़ने वाले को मलामत ना किया जाए, सिवाय इसके कि वो नमाज को मामूली जानते हुए ऐसा करे। इसका हुक्म बयान किया जा चुका है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तुझे हिदायत पर कायम रखे। ऊंची आवाज में नमाज पढ़ना कैसा है? नमाज में करात की आवाज का मामला नमाज की नौयत पर मुनहसिर है। नंबर 1, फर्ज नमाजों में करात की आवाज। जहरी नमाजें ऊंची आवाज में फजर, मगरिब, इशा और इशा और जुमे की नमाजों में इमाम और तन्हा पढ़ने वाले के लिए सूरतुल फातिहा और अजाफी सूरत ऊंची आवाज में पढ़ना सुन्नत है। सतरी नमाजें आहिस्ता आवाज में। जोहर और असर की नमाजों में कराहत आहिस्ता की जाती है। नंबर 2, नफल नमाजों में करात। नफल नमाज में दिन के वक्त आहिस्ता और रात के वक्त ऊंची आवाज में पढ़ना बेहतर है, लेकिन दोनों तरीके जायज हैं। नंबर 3, ऊंची आवाज में पढ़ने के अहकाम। इमाम के लिए जहरी नमाजों में मुक्तदियों को सुनाने के लिए ऊंची आवाज जरूरी है, लेकिन इतनी बुलंद ना हो कि नमाज की खुशू में खलल पड़े। तन्हा पढ़ने वाले के लिए अगर कोई शख्स तन्हा जहरी नमाज पढ़ रहा हो तो वो ऊंची आवाज मुस्तहिब है, लेकिन आहिस्ता पढ़ने पर भी नमाज हो जाएगी। मुक्तदी के लिए मुक्तदी खामोश रहेगा, सिर्फ सूरतुल फातिहा दिल में पढ़ेगा। गलती से ऊंची आवाज का इस्तेमाल। अगर कोई जोहर या असर में भूल कर ऊंची आवाज में करात कर ले या जहरी नमाज में आहिस्ता पढ़ ले तो नमाज हो जाएगी, लेकिन सुन्नत के खिलाफ होने की वजह से मकरूह, तंजीही और नापसंदीदा है। ऊंची आवाज में नमाज पढ़ना जहरी नमाजों फजर, मगरिब, इशा में सुन्नत है, जबकि सतरी नमाजों जोहर, असर में आहिस्ता पढ़ना वाजिब है। नफल नमाज में रात को ऊंची आवाज मुस्तहिब है। अल्लाह पाक हमें दीन की मुकम्मल समझ नसीब फरमाए और हमें 5 वक्त नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें सुन्नत के मुताबिक नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।